Assalamu alaikum bachcho. Today the topic which we have to done is pathogenesis, and I hope I was clear last time when we are doing classification and the major portion of the structure of the bacteria. Before starting with the pathogenesis, you should know that pathogenesis is basically the generation or the genesis of pathology in the human body due to these bacteria, as we are talking about the pathogenesis of bacterial infection. So you should know that there is a chain of infection which is important for causing the pathogenesis in human body. This is the first portion is the infectious agent. For example, what we are now, as we are now discussing about the bacterial pathogenesis, the infectious agent is bacteria. Is it Staph aureus, E. coli, or any one of it. Then we come the reservoir. Who is the person who is the person or human living thing that can get infected by that person, that bacteria? And that is human, of course, when we are talking about. Portal of exit. Portal of exit means that from where it is coming. For example, in the typhoid fever or the GIT infections, or for example in corona, you know that the reservoirs are humans. One human is getting infection from the other human, and the portal of exit is his nose and throat and the secretions of his body, which are going on to the hands or other objects around the patient, and through which the patient exits the organism from its body. Mode of transmission is the same as portal of exit or entry. For example, if it is a secretory through the nasal part or the respiratory part, it will be nostrils or your mouth through which you are coughing or sneezing from your nose. Similarly, portal of entry will be the same. If the bacteria is getting out of the body from fecal route, then it will be from mouth to or fecal route. Then the portal of entry will be the same. And if the port of exit or entry is respiratory system through sneezing or coughing, the portal of entry will be the same. Your mouth and your nose, or your throat basically, and your nose. And the susceptible host is usually the same as reservoir, that is human. In the parasitology, it is different because the animals are involved. But in the bacteriology, it's always the same. Humans got infection from the humans, irrespective of some diseases which are due to the zoonosis or the zoonotic animals. Otherwise, it's same from the human to human. And then again, the infectious agent is there. So in cutting it short, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो infectious agent है वो क्या है, वो बैक्टीरिया है. उसके बाद आपको ये पता चाहिए कि वो बैक्टीरिया आया कहाँ से, किधर से, किस ह्यूमन से एग्जिट हुआ है, उसकी किस बॉडी के पार्ट से एग्जिट हुआ है, और फिर वो आगे अगले पेशेंट को ट्रांसफर होगा, अगले ह्यूमन को ट्रांसफर होगा. तो सेम बॉडी पार्ट जो है वो पोर्टल ऑफ एंट्री का रोल प्ले करेगा. एग्जिट का मतलब जो ऑलरेडी इन्फेक्ट पेशेंट है उसकी बॉडी से कहाँ से निकला, और पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब है कि जो नया पेशेंट है उसकी बॉडी के पार्ट किधर से एंटर होगा. सो इट्स ऑलवेज. मैम जी जी मैम, ससेप्टेबल होस्ट और रेजर्वॉयर में क्या फर्क होगा? बेटा, ससेप्टेबल होस्ट का मतलब ये है कि वो पेशेंट, वो पर्सन, ह्यूमन जो अभी तक बीमार नहीं था लेकिन उसको बीमार करेगा रेजर्वॉयर. रेजर्वॉयर वो है जिसके अंदर ऑलरेडी ये बैक्टीरिया जाके इन्फेक्शन कर चुका है और वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन गया है फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. जैसे कि एक कोरोना का पेशेंट होता है, हम कहते हैं इसको आइसोलेशन में डालना है. क्यों? क्योंकि वो दूसरे नॉर्मल पेशेंट्स को इन्फेक्ट ना कर सके और ये जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो ब्रेक हो जाए. जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है उसका वहां से एग्जिट हो भी तो आगे वो नए बंदे को शिफ्ट ना हो, और अगर शिफ्ट हो तो ऑलरेडी अगर पीपीईज आपने पहनी हुई है, प्रॉपर प्रोटेक्शन की हुई है, तो वो आप तक नहीं पहुंचेगा. तो रेजर्वॉयर वो बंदा होता है जिसमें रिजर्व हुए होते हैं ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियाज जो कि एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन कॉज करते हैं. और ससेप्टेबल होस्ट वो होता है जो मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन है. हम 7 लोग एक कमरे में बैठे हुए, एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, एक को फ्लू हो, जरूरी नहीं है हम बाकी 6 को भी फ्लू हो जाएगा, है ना. तो जो मोस्ट उस वक्त ससेप्टेबल होगा, यानी कि जिसकी इम्यूनिटी किसी वजह से वीक होगी, या ओल्ड एज होगा बहुत ज्यादा, या यंग छोटा बच्चा होगा, तो ही और या कोई और किसी और वजह से उसकी इम्यूनिटी लो है, तो वो ऑलरेडी ससेप्टेबल है कि उसको, उसके ज्यादा चांसेस है कि उसको इन्फेक्शन हो जाए. ना कि एक ऐसे बंदे में जो कि मेरी तरह या आपकी तरह हेल्दी है, जिसमें कोई एज फैक्टर भी हाईली क्रिटिकल एज फैक्टर नहीं है, या जिसके अंदर
कोई इस तरह की डिजीज नहीं है ऑलरेडी जो कि उसको इम्यूनो सप्रेस कर रही हो. सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ससेप्टेबल होस्ट. एंड रेजर्वोयर का Yes, मतलब ma'am. Thank you. जी, इज इट क्लियर? जी मैम समझ आ गई. जी. तो ये बेसिकली ये चीजें आपको जाननी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये सब एज पॉइंट्स पता होंगे तो हम आगे मूव करेंगे कि पैथोजेनेसिस हुई कैसे. सबसे पहले आपको ये पता चाहिए कि बॉडी के अंदर बैक्टीरिया गया कैसे. उसके बाद हम पैथोजेनेसिस पे आ जाएंगे कि जी अगर वो अंदर चला गया है तो वो क्या क्या है कैसे करके डिजीज प्रोसेस को स्टार्ट करता है. पैथोजेनेसिस का मतलब होता है मेनली द डिजीज प्रोसेस व्हिच इज गोइंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड देन कॉजिंग द डिजीज. What is a pathogen? A microorganism capable of causing disease is called pathogen. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे millions and trillions and lots of bacteria are there. So, but all of them are not pathogens. Those bacteria which or those microorganisms which are capable of causing disease in a human are called pathogen. ये simple definitions हैं. आज के लेक्चर में ज्यादा important चीज ये है कि आपको chain of pathogenesis का पता होगा. वर्ड में हम summarize करेंगे. एंड उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर सर्टेन डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए. इट इज वेरी गुड अगर आपके पास बुक है तो उसी वक्त अभी एंटर उस पे करते रहो साथ साथ. अगर नहीं है तो एक वाइट पेज पे कर लो एंड देन अपनी बुक पे नीट कर लेना. तो फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ पैथोजन व्हिच इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज. व्हाट इज एन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन? एक नॉर्मल पैथोजन की बात हमने कर ली कि कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करे इज कॉल्ड पैथोजन. अब अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन वो होता है जो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर कर सके डिजीज. इट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट आर केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज इन अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल. ये पैथोजेंस नॉर्मल ह्यूमंस में नहीं करते डिजीज. ये जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगला जो पेशेंट है या अगला जो ह्यूमन है वो उसकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट चल रही है बॉडी में, ही इज अनएबल टू डिफेंड द बैक्टीरिया अगेंस्ट इन हिज बॉडी फ्रॉम हिज बॉडी इम्यूनिटी. तो दैट इज कॉज अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन. जब उसको ये वाली अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उसको डिजीज कॉज करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा. और यूजुअली ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी बॉडी में नॉर्मली रिजाइड करते हैं एज अ नॉर्मल फ्लोरा. आपको पता है ना नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है? वो आप लोग कर चुके हो मेरे ख्याल से. जी मैम. वेरी. तो दोज आर दोज. अब ये देखो, द ऑपर्चुनिस्ट्स आर फ्रीक्वेंट मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्लोरा. जैसे कैंडिडा. इन डायबिटिक पेशेंट्स कैंडिडल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, वेजाइनल भी, ओरल थ्रश भी, अदर इन्फेक्शंस भी कर सकता है लेटर ऑन. इसी तरह जैसे स्टेफ ऑरियस नॉर्मल पेशेंट में नहीं करता लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है उनमें कर सकते हैं इन्फेक्शन. जहाँ पे उसको कोई ओपन स्किन मिल जाएगी, स्किन से ओपन लीजन होगा, कोई कट है वो, वहाँ पे आपका इन्फेक्शन हो जाएगी उस वूंड में. That is because of opportunity that he is availing from its normal state. So that is why the term opportunistic refers to the ability of the organism to take offered by reduced host defenses. हमारे host defenses क्या हैं? हमारी cellular immunity और हमारी antibody की immunity. तो ये दोनों चीजें हैं. कुछ cells हैं हमारी body में white blood cells जो कि हमारे bodyguards की तरह act करते हैं. जो और इसी तरह कुछ और WBC cells हैं जो एंटीबॉडीज भी बनाते हैं. एंटीबॉडीज क्या है? वो बुलेट्स हैं जो यूज करते हैं वो अगेंस्ट द इन्फेक्शन और द बैक्टीरिया. और जो हमारे पुलिसमैन हैं या हमारे बॉडीगार्ड्स हैं वो ये सेल्स, दोज आर लिम्फोसाइट्स. ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स. तो ये जो है इनके अगेंस्ट यूज करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं. जब इनके लेवल कम हो आपकी बॉडी में तो आपका अपना नॉर्मल फ्लोरा आपके अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देता है. तो दीज पैथोजेंस are those pathogens which act when the immunocompromised state is present in the patient. तो अब तक हमने दो डेफिनेशंस कर ली, तीन बल्कि, एक पैथोजेनेसिस की, एक पैथोजन की और एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन की. नेक्स्ट इज विरुलेंस. विरुलेंस क्या होती है? इट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पैथोजेनेसिटी एंड इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज. इन सर्टेन डिजीजेस आपको 10 raised to power 8 लेवल चाहिए बैक्टीरिया का टू कॉज इन्फेक्शन. कुछ बैक्टीरियाज में, कुछ बीमारियों में आपको उससे भी ज्यादा चाहिए, मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होंगे तब इन्फेक्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे. सो इस चीज को मेजर करना कि कितने बैक्टीरियाज, एक ही टाइप के बैक्टीरियाज नंबर ऑफ क्वांटिटी में होंगे आपकी बॉडी के अंदर एंटर तो वो डिजीज कॉज करते हैं वरना नहीं करेंगे, इज कॉल्ड विरुलेंस. आई होप इट इज क्लियर. इट इज द क्वांटिटेटिव, यानी यू कैन काउंट द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ से कि इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया बॉडी में होंगे तो ये डिजीज कॉज करेंगे, पैथोजेनिसिटी करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे. तो ये जो क्वांटिटी है, जो मिनिमम लेवल ऑफ बैक्टीरियाज है, क्वांटिटी है,
जो डिजीज कॉज करे इज कॉल्ड विरुलेंस। तो ये आपकी फोर्थ डेफिनेशन अब होगी। ये विरुलेंस ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पैथोजेनिसिटी दैट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू डिजीज। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक तो है 50% लीथल डोज और एक आ जाती है 50% इन्फेक्शियस डोज। अब लीथल डोज वो है जिसमें आप एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन को किल कर दें, इतनी सिवियर डिजीज कॉज की। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलरा एक जगह एक दिन एक वन ईयर आई थिंक 2005 देयर वाज एन एपिडेमिक ऑफ कॉलरा इन पाकिस्तान एंड व्हिच कॉजेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेथ ड्यू टू फ्लूइड लॉस इन द बॉडी। सो उसको हम कहेंगे कि लीथल डोज थी वो कॉलरा टॉक्सिन की फ्रॉम द कॉलरा बैक्टीरिया। ये बॉटल नंबर ओके। इसी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नीडेड टू किल हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ टेस्टेड पॉपुलेशन। आपने 100 लोगों की पॉपुलेशन ली और देखा कि उनमें ये डिजीज कॉज हुई, उनमें से 50% जो है वो मर गए बिकॉज ऑफ कॉलरा, 50% जिंदा रहे। तो वो जो डोज उन बैक्टीरिया की उन पेशेंट जो मर गए उनके अंदर थी इज कॉल्ड 50% इन्फेक्शियस डोज, सॉरी 50% लीथल डोज। ठीक है, जब किल की बात आएगी तो लीथल, जब सिर्फ डिजीज कॉजिंग की बात आएगी तो इन्फेक्शियस। ये दो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। लीथल डोज क्या होती है, 50% ऑफ लीथल डोज क्या होती है कि if the half of the tested population is killed due to those organism is called lethal dose। और अगर सिर्फ इन्फेक्शियस हुआ डिजीज कॉज की है इन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में तो दैट विल बी इन्फेक्शियस डोज। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इनके नाम से आपने याद रखना है बच्चों कि लीथल वो है जो डेथ कॉज कर रहा है और इन्फेक्शियस डोज वो है जो कि डिजीज कॉज कर रही है या इन्फेक्शन कॉज कर रही है इन अ टेस्टेड पॉपुलेशन डोज। फॉर एग्जाम्पल मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैंने किसी भी डिजीज और टाइफाइड पे रिसर्च की एंड मैंने देखा कि 200 पेशेंट्स है मेरे पास, आउट ऑफ 50 पेशेंट का 100 पेशेंट जो 50% है, 100 पेशेंट जो है दे गॉट द डिजीज एट अ डोज ऑफ फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁹ ऑफ दैट बैक्टीरिया दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। तो वो डोज जो है वो इन्फेक्शियस डोज कहलाएगी क्योंकि उसने 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो कि हम पढ़ रहे हैं जो टेस्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर उसको डिजीज कॉज कर रही है। So that will be the number of organisms that is needed to cause infection in the half of the population. Same goes for the lethal dose, जो कि उसी 200 पेशेंट में से 100 पेशेंट की डेथ कॉज कर रही है, किल कर रही है उनको। इतनी सिवियर लीथल डिजीज कर दी उसने कि 50% को किल कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आगे चलूंगी। Yes, ma'am. बेटा तो ये भी डेफिनेशन आपको पता नहीं चाहिए कि लीथल डोज 50% लीथल डोज क्या है और 50% इन्फेक्शियस डोज क्या है। Okay, the infectious dose of an organism required to cause disease varies greatly among the pathogenic bacteria. As I told you before that it depends on the bacteria's pathogenicity. कुछ बैक्टीरिया इतने लीथल होते हैं कि उनकी थोड़ी डोज भी काफी होती है एक पेशेंट को इन्फेक्शियस करने के लिए, लेकिन कुछ पेशेंट बेचारे कुछ डोजेस जो है वो कुछ बैक्टीरिया इतने नॉन लेथिकल होते हैं कि वो क्या करते हैं, वो उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए फिर वो कॉज करेंगे डिजीज, अदरवाइज वो कुछ नंबर से डिजीज कॉज नहीं करेंगे। Shigella and Salmonella both causes diarrhea by infecting the gastrointestinal tract, but the infectious dose of Shigella is less than 100 organisms, whereas the infectious dose of Salmonella in order of 1 lakh organism. Okay, इसमें Shigella is more toxic than Salmonella. In Shigella में जो infectious dose है that is 100, while in Salmonella it's 1 lakh. तो अब आपको पता चल गया कि एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म दोनों एक ही तरह की डिजीज कॉज करते हैं, बट कौन सी सिवियर और कौन सी नहीं, वो इस वजह से बिकॉज शिगेल्ला इज कॉजिंग ब्लडी डायरिया एंड सैल्मोनेला इज कॉजिंग सिंपल डायरिया, और वो उसकी बाकी अदर टर्मिनोलॉजीज हैं बिकॉज ऑफ द डिजीज कॉल्ड टाइफाइड। So our organism is different from the other. Same goes for the infectious dose of that organisms. They are separate entity for the two different kind of bacteria. Okay, now coming to the bacterial virulence factors. वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बैक्टीरियल विरुलेंस को अफेक्ट करते हैं, यानी वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप डोज को कम थोड़ा करके भी लीथल बना सकते हैं। The infectious dose of bacteria depends on primarily the following virulence factors. Number 1, whether their pili allow them to adhere well to the mucous membranes, whether they produce exotoxins or endotoxins, whether they possess a capsule to protect them from phagocytosis, whether they can survive various non-specific host defenses such as acid of the stomach,
or saliva of the mouth or your gut secretions, ठीक है। अब इसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, पाइला है। मैंने आपको लास्ट टाइम स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था तब बताया था कि पाइला से अडेयर होता है। पाइला जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनके ऊपर जाके स्टिक करता है बैक्टीरिया। अगर तो उसके पाइला हैं तो बड़ा अच्छे तरीके से उसका अडेयर कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसकी कम क्वांटिटी भी लीथल साबित होगी हमारे लिए। ये इसी तरह है जैसे आप 100 बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाएं, उनमें से 70 को हमारे होस्ट सिस्टम्स दें, हमारे इम्यूनिटी ने ही रूल आउट कर दिया, तो वो 30 बेचारे क्या करेंगे। तो ऐसे केस में आपको 100 नहीं 200 हो तो फिर काफी रहेंगे, क्योंकि 60 ने तो वैसे ही निकल जाना आपकी बॉडी से बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम। तो बाकी अगर 60 100 होंगे, 200 में से 60 निकल गए, तो बाकी अगर होंगे 80 या वहाँ, तो फिर उसके बाद ही काम चलेगा। तब वो 120 के करीब जब होंगे तो वो आपको कॉज करेंगे डिजीज प्रॉपर्ली। इसी तरह जो आपके एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स हैं उनका डिपेंड करते हैं। एंडोटॉक्सिन्स आर मैंने आपको बताया था कि वो बॉडी के अंदर है, जबकि एक्सोटॉक्सिन्स में तो बैक्टीरिया ने एक्सोटॉक्सिन रिलीज कर दिया आपकी बॉडी के अंदर, खुद वो चाहे इवेपोरेट हो गया, लेकिन वो एक्सोटॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर है, तो वो एक्ट करते रहेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। सो दे हैव हाई एफिनिटी फॉर कॉजिंग द डिजीज इन द ह्यूमन बॉडी। जबकि एंडोटॉक्सिन तब होगा जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रहेगा, तो बैक्टीरिया का नंबर होना ज्यादा जरूरी है ताकि एंडोटॉक्सिन्स भी ज्यादा हों और डिजीज प्रोसेस स्टार्ट हो सके। देन वो कहते हैं कैप्सूल, अगर कैप्सूल है किसी बैक्टीरिया के आउटसाइड तो भी उसका मरना मुश्किल है, उसका पुलिसमैन जो हमारी बॉडी के पुलिसमैन है दैट इज WBCs, उनसे पकड़ा जाना मुश्किल है। तो इसलिए दोज कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज उनकी कम क्वांटिटी भी काफी है इन ऑर्डर टू कॉज द डिजीज और इन्फेक्शन इन योर बॉडी। जबकि जो नॉन कैप्सुलेटेड है उनकी फैगोसाइटोसिस फौरन हो जाती है, जल्दी हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि उनकी डोज ज्यादा हो, यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया ज्यादा हो, दोज हु आर नॉन कैप्सुलेटेड और अनकैप्सुलेटेड। ओके, देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज कि वेदर दे कैन सर्वाइव वेरियस स्पेसिफिक होस्ट डिफेंसेस, क्या उनके पास ऐसी बैक्टीरिया के पास ताकत है या कोई ऐसे एजेंट्स हैं जो कि अवॉइड कर सकें एसिड प्रोडक्शन ऑफ द स्टमक को या स्लाइवा ऑफ योर माउथ को या द अदर सिक्रेशंस ऑफ योर बॉडी और गट को वो डिफेंड कर सकें इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड। अगर तो ऐसी कंपोनेंट्स हैं उस बैक्टीरिया में तो उसकी थोड़ी डोज भी इन्फेक्शियस डोज होगी। लेकिन अगर वो नहीं है और वो इजीली जो है होस्ट डिफेंसेस से हर्ट हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उन बैक्टीरियाज में उसकी क्वांटिटी का होना ज्यादा जरूरी है in order to cause the infectious disease. I hope I'm clear on these 4 points. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. जब भी कुछ प्रॉब्लम बेटा समझ ना आए तो उसी वक्त बीच में जोड़ दें, ताकि क्योंकि ये सारा जो है ना एक फ्लो में है। अगर आप किसी स्टेप पे स्किप कर जाओगे, आपको नहीं समझ आएगी, तो अगले कोई भी स्टेप समझ नहीं आए। ओके जी, एंड नेक्स्ट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं, एक तो उनकी बॉल भी नहीं होती, उनके कई मेजर ऑर्गेनेलीज ही नहीं होते, तो वो अकेले सर्वाइव ही नहीं कर सकते। दे टोटली डिपेंडेंट ऑन योर होस्ट सेल, ह्यूमन सेल, जिसके अंदर सारे सेल के ऑर्गेनेली हो, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो, न्यूक्लियस भी हो, DNA मटेरियल भी हो, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मटेरियल भी हो। तो ऐसे बैक्टीरिया जो है उनको रिकेट्सिया और क्लेमिडिया कहते हैं, और इनको कहते हैं इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट मींस कि कंपल्सरी है उनके लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए कंपल्सरी है, अदरवाइज वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे और वो डेथ उनकी हो जाएगी, तो फिर उनका इन्फेक्शियस डोज का मटेरियल नहीं मिलेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। Why do people get disease, infectious diseases? People get infectious diseases when the microorganisms overpower our host defenses. That is when the balance between the organism and the host shift is in favor of the organism. There's two determinants. एक तो ये कि या तो number of organism बहुत ज्यादा हो गया, या उसकी virulence इतनी तेज ज्यादा है कि वो थोड़ी क्वांटिटी में भी आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो he can or she can report the disease. अच्छा, अब उसमें इंपॉर्टेंट वही वाली बात, ये जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो डोजेस की, इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात, जो वेरियस फैक्टर्स की हमने बात की, वो दैट इज द मेन रीजन व्हाई द पीपल गेट डिजीज। अब इसमें ये है कि या तो आपका एनिमी बहुत स्ट्रांग है या बहुत वीक हो गए हो, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस डिजीज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, whether it's an opportunistic infection or a normal endemic or epidemic infection जो सबको हो रही है, यानी जो वीक होस्ट है उनको भी हो रही है और जो नॉर्मल होस्ट है उनको भी हो रही है, बिकॉज द रेलेवेंस फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज वेरी हाई।
जो उसकी विरुलेंस है वो बहुत हाई है, या उसका नंबर बहुत ज्यादा हाई हो गया है, एपिडेमिक हो गया है, हर किसी को हो ही जा रहा है आपके इन्वायरमेंट में, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, जैसे आजकल कोरोना है वो हर पेशेंट को हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ द नंबर ऑफ द कोरोना, वो हर कुछ होस्ट हो रहा है। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो होस्ट है, जैसे कि जो ओल्ड एज है, दे आर अफेक्टेड मोर बिकॉज दे आर वीक बाय देयर होस्ट डिफेंसेस। तो ये दोनों चीजें बायलैटरल चलती हैं, आइदर आप खुद वीक हैं या आपका दुश्मन बहुत तगड़ा हो गया है या ज्यादा नंबर में हो। तो ये दो पॉइंट्स, दो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि क्यों एक पेशेंट या एक ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शियस डिजीज होती है। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शंस, कुछ सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, सिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है कि वो चीजें जो पेशेंट आपको खुद बताए, जैसे फीवर, कफ या कोई भी ऐसी चीज आपकी बॉडी में चेंज आ रही है जो आप महसूस कर रहे हैं और जो अपने डॉक्टर को या क्लिनिशियन को कन्वे कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होता है जो कि साइंस हैं, कुछ डिजीजेस जिनमें साइन नजर आते हैं, आपको कोई पेशेंट एनीमिक नजर आता है, उसको वैसे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब एक डॉक्टर या कोई भी मेडिकल हेल्थ के वर्कर देखते हैं वो कहते हैं यार तुम पीले पड़े हुए हो, यार तुम्हारी आंखें की जो है वो भी बिल्कुल व्हाइट हुई हुई हैं, स्क्लेरा का बिल्कुल सारा जो है कॉर्निया और सारी आईज जो का जो है पार्ट, व्हाइट पार्ट, दैट इज व्हाइट, दैट इज फेडेड, दैट इज येलो समटाइम्स। तो ये सारी वो साइंस हैं जो एक हेल्थ केयर वर्कर देखता है व्हेन यू कम टू हिम एज अ पेशेंट, या वो आपको कोई और ऑब्जर्वेंट भी बता सकता है जो आपके नियर बाय में हो, जिससे आपकी मदर है या आपकी सिस्टर है, जो आपको गौर से देखे तो आपको बताए जी बहुत प्रोमिनेंट चेंज है आपके अंदर, ये देखो जाके चेक करवाओ। तो ऐसी चीजें साइन एंड सिम्टम्स होती है, कहलाती हैं। सिम्टम्स वो जो पेशेंट खुद फील करे और साइंस जो दूसरे देख के उसको बताएं, स्पेशली डॉक्टर या नर्स जो भी क्लिनिशियन है। एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन का मतलब वही होता है कि यू हैव द बैक्टीरिया इन योर बॉडी but you don't have any clinical symptom about it. You cannot feel that bacteria is present inside you. एसिम्टोमेटिक का मतलब ये है कि आप उसको इन्फेक्शियस आप कर सकते हैं आगे, यानी कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर आई एम हैविंग salmonella typhi in my gallbladder stored there but I am not symptomatic, I don't have any clinical condition which I can address on behalf of that कि मुझे कुछ मसला है जरूर, let me find out कि वो क्या मसला है, लेकिन that salmonella typhi is residing in my gallbladder, तो मैं क्या करूंगी कि मैं वो शेड करूंगी थ्रू fecal route, and that can be spread from one person to another, so many people can get infectious by me, but I'm not symptomatic, I don't have the disease. So this type of phase is called asymptomatic infections. I have the bacteria and that bacteria is transmitted to the others, but myself is not having any symptomatic condition, I myself is not affected by that bacteria, मुझे कोई रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा सिवाय इसके कि मैं वो स्टोर कर रही हूँ और मैं अगले पेशेंट में ट्रांसफर कर रही हूँ, अपने सराउंडिंग के लोगों में ट्रांसफर कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। Person acquires an organism, but no infectious disease occurs because the host defenses are very successful. वो जो मेरे होस्ट डिफेंसेस हैं वो मुझे तो बचा लेते हैं मेरी डिजीज से, लेकिन जो मैं ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर स्टोर हुआ है उसको एक्सक्रीट कर रही हूँ अपनी बॉडी से, वो मेरे होस्ट डिफेंसेस उसको सेव नहीं कर रही, उसको तो एक्सक्रीट कर रहे हैं होस्ट डिफेंसेस बड़े वेल, लेकिन वो ट्रांसमिट हो रही है टू द अदर पेशेंट्स, क्योंकि ये एक खतरनाक बात है, क्योंकि अगले पेशेंट को नहीं पता कि मुझे डिजीज है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे पास सल्मोनेला टाइफी जो मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ। सो इसलिए कहते हैं कि पेन एंड फीवर एंड ऑल दो सिम्टम्स आर ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। इससे क्या होता है, जब तक आपको कोई निशानी नहीं मिलती आप उसको ठीक कैसे करेंगे, इसी तरह जब आपको अपनी गलती कोई नजर नहीं आती आप उसको ठीक कैसे करेंगे। इसलिए इंसान को अपना भी पोस्टमार्टम करते रहना चाहिए कि वेदर उसके अंदर कोई ऐसी गलती तो नहीं है जिसको उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जो दूसरे लोगों को अफेक्ट कर रही है, कोई ऐसी बैड हैबिट जो दूसरे लोगों को अफेक्ट कर रही है, तो वी शुड रिन्यू आवरसेल्फ। So these asymptomatic infections are very bad if anyone have, because if they are silent killers, silently ये transmit होते हैं, किसी को पता नहीं होता। यही चीज हेपेटाइटिस बी में भी है, यही चीज हेपेटाइटिस सी में भी है, इसी तरह की डिफरेंट और इन्फेक्शन में होती है कि पेशेंट कैरियर स्टेट में चला जाता है। कैरियर स्टेट क्या है, वो यही है कि those asymptomatic infections, those organisms which are having infections but asymptomatic, they are in the carrier state of those infections, those bacteria, वो कैरी करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन खुद उनको इफेक्ट नहीं होता। उनके लिए तो ब्लेसिंग है कि चलो जी शुक्र है उनको कुछ नहीं हुआ, कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं आया, लेकिन फॉर योर एनवायरनमेंट, फॉर योर क्लोजर वंस, इट्स बैड, क्योंकि उनको आप ट्रांसमिट कर रहे हैं एंड दे डोंट नो, एंड इवन यू आर also helpless because you don't know even you are having this disease. Person acquires an organism, तो दोबारा से हम चलते हैं symptomatic infections। Person acquires an organism but no infectious disease occur because the host defenses of that particular patient are very successful. Latent infections क्या होती हैं? Once आपको infection हुई,
in which the reactivation of the growth of the organism and reoccurrence of the symptom occur. Other infection led to the chronic carrier state in which the organism continue to grow with or without producing symptom in the host. Latent infection ये होती है कि मैं नॉन इन्फेक्शियस स्टेट में थी एसिम्प्टोमेटिक, कुछ अर्से बाद मेरे अपने इम्यून सिस्टम डिरेंज हो गया ड्यू टू एज और ड्यू टू सम अदर डिजीज, खुदा न खास्ता इफ आई एम हैविंग सम अदर डिजीज लाइक डायबिटीज और एनीथिंग एल्स, जिससे मेरी जनरल नेचुरल इम्यूनिटी लो हुई. तो क्या हुआ कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन थी ना, दैट बिकम सिम्प्टोमेटिक. लेकिन ये जब मुझे इन्फेक्शन हुई उस वक्त नहीं हुई और बाद में हुई, इसलिए इसको लेटेंट इन्फेक्शन कहेंगे. सिमिलरली अगर मैं इसी तरह रहूं कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रहूं लेकिन मैं सिम्प्टोमेटिक नहीं हुई कभी भी, लेटेंट इन्फेक्शन भी मुझे नहीं हुई, तो मेरी फेट मेरा इन्फेक्शन क्या है, क्रॉनिक कैरियर स्टेट, जो मैंने आपको पहले बताया कि इयर्स एंड इयर्स के लिए जो सैल्मोनेला टाइफी है जो अब आपके ना गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है, पड़ा रहता है वहीं, वहाँ मल्टीप्लाई होता रहता है, आगे ट्रांसमिट होता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, ट्रांसमिट होता रहता है, लेकिन सिम्टम्स कभी भी नहीं देगा जिस पर्सन के अंदर वो कैरियर स्टेट में है. So these three statements are very important. You should know and you should write it down on your book. Number one was the non-symptomatic infections, then latent infections, and then the chronic carrier state. ये आपको आना चाहिए, ये बहुत frequently asked questions, especially with the viva. These are very important statements. Okay, फिर जो important statements हैं, इस वाले आज के lecture में ज़्यादा definitions हैं, and these are very very important क्योंकि ये बार-बार आगे इस्तेमाल होंगी जब भी हम एक एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, तब ये आपके लिए इस्तेमाल होंगे. एंडेमिक इन्फेक्शन इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एट अ लो लेवल इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन. ठीक है, एंडेमिक में क्या है कि कॉन्स्टेंटली है और लो लेवल पे है, कोई बड़ा वो टॉर्चर या बड़ा अजाब का सफर नहीं नाजिल हुआ, आप लो लेवल पे रही लेकिन है. और फॉर एग्जाम्पल पोलियो इज एंडेमिक इन आवर सिचुएशन, हमारे यहाँ है अभी भी, लो लेवल पे हो गया है क्योंकि हमने इसको कंट्रोल किया है, लेकिन इट इज देयर. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कंटिन्यूअसली डूइंग वैक्सीन्स फॉर दैट, ताकि वो एंडेमिक से भी खत्म हो जाए. एपिडेमिक क्या है, इन्फेक्शंस दैट अकर्स एट अ मच हायर रेट देन यूजुअल. एकदम से आ गया फ्लू इन द कोल्ड सीजन, अब जैसे कोरोना आ गया, अगर से मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इट्स एपिडेमिक, एक खास रीजन के अंदर आया ना, अगर वो वर्ल्ड वाइड फैल गया है, जो कि अब जब पहले चाइना में था तो वो एपिडेमिक था, अब वो पूरा वर्ल्ड वाइड फैल गया कोरोना, सो इट बिकम्स पैंडेमिक. एपी मींस वन और सिंगल एरिया, पैन मींस ऑल द वर्ल्ड ऑलमोस्ट, तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. वही इन्फेक्शन जब वर्ल्ड वाइड हो जाएगी तो पैंडेमिक लाइक. आई होप आई एम क्लियर. पैंडेमिक मींस वो होती है वो डिजीज आपकी अपनी स्पेसिफिक डिजीजेज जो आपके एरिया में हैं फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन वो लो लेवल पे हैं, दे आर नॉट टू मच इन्फेक्शियस और लीथल बट दे आर देयर. एपिडेमिक और पैंडेमिक क्या है, ये खास डिजीज है, खास वक्त में बहुत ज्यादा रेट पे, मच हायर रेट पे इन्फ्लुएंट हो जाती है खास एरिया में, तो वो एपिडेमिक है. और अगर वर्ल्ड वाइड हो जाती है तो इट्स अ पैंडेमिक स्टेट ऑफ द डिजीज और द इन्फेक्शन. ये यहाँ तक आपको समझ आ गया बच्चों डेफिनेशंस का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब आपको मैंने जो बताई है बात सारी बातें चलेंगी. व्हाट इज लेटेंट फेज और लेटेंट इन्फेक्शन? एनीवन कैन आंसर. मैम जो पर्सन एसिम्प्टोमेटिक हो लेकिन इन्फेक्ट होने के काफी अरसे बाद उसको दोबारा रीइंफेक्ट करें. यस, तब उस पेशेंट में सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन करें. ठीक है, लेटेंट इन्फेक्शन और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में क्या फर्क है कि एसिम्प्टोमेटिक में तो कभी भी सिम्टम नहीं आएंगे, लेटेंट में है कि वो पहले एसिम्प्टोमेटिक था लेकिन बाद में ड्यू टू एनी कॉज जिसकी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वो उसने क्या किया, उस पेशेंट में डिजीज के सिम्टम्स आने शुरू कर दिए. ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी जो स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, एंड ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए बच्चों कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, व्हाट इज प्रोड्रोम पीरियड, what is the specific illness period, and what is the recovery period. These are the 4 stages of any infectious disease. First of all, incubation period. This is the time between when the organism get into your body and then start causing the symptoms. ये जो टाइम पीरियड है यूजुअली 2 वीक्स का होता है. अक्सर डिजीज में हमने सुना है 14 डेज. फॉर एग्जांपल कोरोना है, इसमें उन्होंने कहा 14 डेज. इसके अंदर अंदर आपको अगर सिम्टम्स आने हैं तो आ जाएंगे फ्रॉम गेटिंग द डिजीज. इसी पेशेंट एरिया में हाईली इन्फेक्शियस होता है एक्सक्यूज, इसी एरिया में हाईली इन्फेक्शियस होता है पेशेंट, सो यू हैव टू टेक द आइसोलेशन फॉर दैट पेशेंट एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर PPEs and all the stuff
to secure yourself from the patient as well. So the incubation period is the time between the acquisition of the organism or the entry of the organism into your body and the beginning of the symptoms or signs or the disease symptoms. Prodrome period Ma'am? क्या है जी? मैम इंक्यूबेशन पीरियड कोविड का 3 to 5 days नहीं है? नहीं बेटा, मतलब जब उसके सिम्टम्स आना शुरू हुए. this is totally dependent on the patient. ये तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. लेकिन इसमें जो रेंज रखी है ना, जो कि इसमें आइसोलेशन में रखने की, वो दैट इज द पीरियड ऑफ 14 days. आप सही कह रही हो कि कुछ पेशेंट में तो वन डे फर्स्ट डे 1 पे भी सिम्टम्स आ जाएंगे. उसको पता ही तब चलता है जब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ऑक्सीजन और इस तरह की चीजें या लेथार्जी, वीकनेस, इस तरह के पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे. लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड लंबा है. क्रोनिक जो कोरोना है, वो जो आप 3 to 5 days की बात कर रही हो ना, वो तो अपीयरेंस ऑफ एग्जैक्ट सिम्टम्स है, या वो 0 पे भी आ सकते हैं जो सिम्टम्स है. मैं जब इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम नाम ले रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने सिम्टम्स की बात की है, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसके अंदर पेशेंट हाईली इन्फेक्शियस होता है, फुल ब्रोन उसके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं. ठीक है. हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then the prodrome period came, time during which the non-specific symptoms occur. ठीक है. इसमें क्या होता है, सिंपल आपको फीवर महसूस होता है, लेथार्जी महसूस होती है. कोरोना क्योंकि नॉन स्पेसिफिक, अभी तक हम उसके बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं अभी अनोन, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है. इट्स नॉट एग्जैक्टली सेम फॉर द सेम पेशेंट. तो कोरोना का एग्जांपल देना यहाँ पे आई थिंक इट्स नॉट गुड, बिकॉज वो वायरल डिजीज है. हम अभी फिलहाल बैक्टीरियल डिजीज की बात कर रहे हैं. तो हम अगर फ्लू की बात कर लेते हैं, वो सॉरी फ्लू भी वही है, सिंपल सोर थ्रोट की बात कर लेते हैं, उसमें भी यही सब चलता है कि आपके अंदर बैक्टीरिया एंटर हो जाता है. फिर थोड़ा टाइम लगता है जबकि वो सिम्टम्स क्रिएट करना शुरू कर दे. शुरू में आपको कौन से सिम्टम्स होंगे? प्रोडोम पीरियड के सिम्टम्स होंगे. प्रोडोम पीरियड के सिम्टम्स वो होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं. आपके गले में कांटे चुभते हैं, आपको फीवर जो महसूस हो रहा है, मैं सोर थ्रोट की बात कर रही हूँ, उसके गले में कांटे चुभते हैं, आपको फीवर से महसूस होता है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा. ये दीज आर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, बट इतना आपकी बॉडी को पता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू आर नॉट फीलिंग नॉर्मल एनर्जिक, लाइक इन नॉर्मल केसेस में आप जिस तरह होते हो. स्पेसिफिक इलनेस पीरियड वो होते हैं जिसमें आप स्पेसिफिक डिजीज कैरेक्टरिस्टिक लेते हो. आपका गले से वॉइस नहीं निकल रही, टोटली पेनफुल थ्रोट है, पेनफुल swallowing है, हाई ग्रेड फीवर है. दीज आर द स्पेसिफिक इलनेस पीरियड है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द सोर थ्रोट. ठीक है, जो कि आपकी स्ट्रेप्टोकोक्का की वजह से होते हैं, या जिस भी और भी बैक्टीरिया की वजह, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, पर मोर कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं. Then comes the recovery period, जिसमें आपकी hoarseness of the voice रहती है. There is no fever, there is no sore throat, there is no cough, maybe sometimes dry cough may be there, but usually fever नहीं होता, आपको pain नहीं होती, but so hoarseness of the voice is there. So that is the symptoms resolving period. यहाँ पे major symptoms आपके resolve हो गए हैं, and you are healthy and your health is getting restored. आप दोबारा energetic feel करना शुरू कर देते हो. अब अगर हम इसको दोबारा से समराइज करें तो इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें इंक्यूबेट हुए ऑर्गेनिज्म इन योर बॉडी पूरी तरह से. जैसे मुझे 100 ऑर्गेनिज्म चाहिए एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन करने के लिए, तो 100 ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी तक इन्फेक्शन सिम्टम्स स्टार्ट होने शुरू हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से कभी शुरू नहीं हुए. तो जब आपको फर्स्ट टाइम फीवर या पेनफुल थ्रोट होना शुरू हो जाएगा, उस तक का टाइम पीरियड को ये लोग इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन दे रहे हैं. ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इन बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस. Prodrome period is that in which you started with the non-specific symptoms, like you have painful throat, you have a little bit cough, you have lethargy, you have loss of energy, you have fever. Specific illness high period क्या होता है? वो period है जिसमें आपको full blown उस disease के symptoms आने शुरू हो जाएंगे. Sore throat है तो high grade fever होगा, आपको painful swallowing होगी, cough होगी, maybe sputum production भी हो, एंड अगर यूटीआई है तो पेनफुल बर्निंग म्यूटिलेशन होगी आपको. उसके अलावा आपको हाइगर फीवर हो सकता है, उसके अलावा आपको पेन के अलावा बर्निंग म्यूटिलेशन हो सकती है, उसके अलावा आपसे लेथार्जी हो सकती है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ मूवमेंट हो सकती है. एंड द रिकवरी पीरियड बहुत है जिसमें सारी इन्फेक्शन के जितने सिम्टम्स हैं वो जाना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ कोई थोड़ी बहुत रह जाए, जैसे लाइट पेनफुल, लाइट जो है वो फीवर फीवर रह गया हो, या आप लॉस ऑफ एनर्जी रिगेन हो रही हो, इस तरह की चीजें होंगी. I hope you are fine with the definitions. अभी आपको समझ आई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. और
Thank you. Next is the stages of pathogenesis. This is also very important. वो जो डिफरेंसेस मैंने बताई उसके बाद अब ये स्टेजेस आपको पैथोजेनेसिस की बतानी चाहिए. फर्स्ट स्टेज क्या होती है? ट्रांसमिशन. जहां से मैंने आपको इन्फेक्शियस चेन से स्टार्ट किया था वो इसीलिए किया था क्योंकि उसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. पहली बात ये कि ट्रांसमिट कैसे हुई आपके अंदर, ये आपकी जो पोर्टल ऑफ एंट्री है वो कैसे हुआ. मैंने सोर थ्रोट की बात की तो उसी से स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम माउथ और फ्रॉम नोज. आपका सोर थ्रोट जो है वो इन दो वजह से होता है. इधर आपने कुछ इन्फेक्शियस मुंह से ली है और थ्रू द ब्रीदिंग इफेक्ट. ठीक है. यूजुअली दीज सोर थ्रोट एंड ये जो है ना सेकेंडरी टू फ्लू इन्फेक्शन होती हैं, सेकेंडरी टू द वायरल इन्फेक्शन होती हैं. सो इसलिए इनको नेजल हम कहते होते हैं कि नेजल ट्रांसमिशन होती है इनकी. देन इन्वेजन ऑफ द प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस जैसे स्किन या स्टमक एसिड. फर्स्ट इवेजन जो है वो आपकी होती है अपने प्राइमरी डिफेंसेस से. मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने हमें जो प्राइमरी, बल्कि मैंने नहीं है रूल ने बताया था कि प्राइमरी डिफेंसेस होते हैं जिनमें स्किन आ जाती है जो कि आपके एक्सटर्नल डिफेंसेस है. स्किन आ जाती है, आपका स्टमक एसिड है, जितनी ओरल कैविटीज हैं वहाँ पे सीलियाज या एपिथेलियम है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है इन सब बैक्टीरियाज की एंट्री से. उनकी कोशिश होती है कि बॉडी में एंटर होने से पहले पहले ये सब एराडिकेट हो जाए. उनमें आपका स्टमक एसिड आ जाता है, आपकी जो ओरल जो है यूरेथ्रल कैविटी या वजाइनल कैविटी या एनल कैविटीज है वो उनको एराडिकेट करने की कोशिश करती है. वहाँ पे सीलियाज और एपिथेलियम जो है. उसके अलावा एसिड्स, उसके अलावा सिक्रेशंस ऑफ योर कैविटीज ऑफ द बॉडी लाइक गट या रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनके सीलियाज, ये सारे जो है आपके प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस हैं. और ये उनको इवेजन करने की कोशिश करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं बैक्टीरिया, ताकि इनसे लड़ाई हो उनकी. व्हेन जो ऑर्गेनिज्म इन सब से डिफेंड करके अपने आप को आगे चला जाता है इन द मेन कैविटीज और योर मेन बॉडी ऑफ योर मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ योर बॉडी, तो फिर वो वहाँ पे डिजीज कॉज करता है. कैसे? सबसे पहले वो एडेयर करता है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर. आपको पता है कि हर जगह पे म्यूकस मेम्ब्रेन उन्होंने बनाई है हमारी प्रोटेक्शन के लिए. तो ये वहां जाके एडेयर करता है, चाहे वो पायलाई से करें चाहे वो अपने कैप्सूल के थ्रू करें. वहां जाके पक्के चिपक जाते हैं ताकि उनको कोई होस्ट डिफेंस छेड़ ना सके. फिर वहां पे वो कोलोनाइजेशन करते हैं. 4 ऑर्गेनिज्म वहां जाके बैक्टीरिया लगे एंड देन दे गेट मल्टीप्लाई. 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यू नो. सो दे मल्टीप्लाई इन अ डबल मल्टीप्लिकेशन मेथड, डबलिंग मेथड से. देन डिजीज फिर वो वहां ढेर करके अब वो डिजीज कॉज करेंगे. कैसे? या एंडोटॉक्सिन्स के थ्रू करेंगे या एक्सोटॉक्सिन्स के थ्रू करेंगे. दो ही मेथड है उनके पास. या अदर सिक्रीशंस कुछ होती हैं जो वो सिक्रीट करते हैं, उसकी वजह से भी जो है वो कॉज कर सकते हैं. अब आ जाते हैं सिम्टम्स. जब डिजीज प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है अकॉर्डिंगली. जिस प्रोसेस से वो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है डिजीज, उस प्रोसेस से वो सिम्टोमेटिक होंगे. अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं तो दे विल बी डिफरेंट. अगर जीआईटी के सिम्टम्स हैं दे विल बी डिफरेंट. अगर यूटीआई है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है तो उसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द एरिया विच इज अफेक्टेड बाय दी बैक्टीरिया. अच्छा, होस्ट डिफेंसेस में क्या होता है कि नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक दोनों करते हैं नेक्स्ट स्टेप में. होस्ट डिफेंसेस रिस्पॉन्सेज हम आपको इसलिए पहले पढ़ाया ताकि आपको अंदाजा हो कि जो नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक है वो उसी जगह पे मौजूद है. यहाँ पे भी जिस एरिया में इन्फेक्शन होगी हमारा इम्यून सिस्टम अलार्म करेगा, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स वहाँ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे. उनकी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा हो जाएगी इन ऑर्डर टू टेक आउट ऑल दोज बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी और दैट बॉडी पार्ट. उसके बाद आ जाता है प्रोग्रेशन या रेजोल्यूशन ऑफ द डिजीज. अब वहां से क्लियर आउट हो गया, आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स आपके वापस आना शुरू हो गए. उसके बाद क्या होता है? आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं. वो जो डिजीज प्रोसेस है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है. इस लास्ट स्टेज को प्रोग्रेशन या रेजोल्यूशन कहते हैं. ठीक है. तो ये 7 पॉइंट्स, ये 7 स्टेजेस आपको बतानी चाहिए. कौन सी? ट्रांसमिशन, कि आपकी बॉडी में आया कैसे, एग्जिट होने के बाद किसी और ह्यूमन बॉडी से, इन्वेजन ऑफ द प्राइमरी होस्ट डिफेंसेस, होस्ट डिफेंसेस को कैसे अपनी किस क्वालिटी की बिना पे डिफेंड किया. देन अडेरेंस, क्या उसके पास पायलाई या कैप्सूल है जिसकी वजह से वो अडेयर कर जाए जल्दी से. देन कोलोनाइजेशन, वहाँ पे कोलोनाइज करेगा, नंबर ऑफ अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा. देन डिजीज प्रोसेस स्टार्ट करेगा और सिम्टम्स करेगा. फिर होस्ट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे कि कौन सी डिजीज के लिए कौन से बैक्टीरिया के किस किस टॉक्सिन पार्ट के लिए क्या क्या होस्ट डिफेंसेस आ गए हैं. एंड देन द प्रोग्रेशन कि रिजॉल्व कैसे हुई डिजीज. डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पैथोजेंस क्या है जी? की ट्रांसमिशन. सबसे पहला पॉइंट जो स्टेजेस ऑफ पैथोजेनेसिस में इम्पोर्टेंट था वो था ट्रांसमिशन. ह्यूमन टू ह्यूमन, एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है, और नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन, चाहे कोई एनिमल मुझे दे रहा है, फॉर एग्जांपल मलेरिया हो गया मुझे, तो वो मच्छर से होगा, नॉट फ्रॉम एनी ह्यूमन डायरेक्टली. या किसी ऑब्जेक्ट्स पे वो लगी हुई थी इन्फेक्शन,
सिक्रेशन लगे हुए थे और उससे मुझे होगी इन्फेक्शन, तो नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन इसको कहेंगे। ये आपकी बॉस में क्या कहते हैं, आपकी बुक के चार्ट से टेबल जिसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखी हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम बार बार दोहराएंगे आगे, इवन व्हेन द बैक्टीरियोलॉजी विल फिनिश। आपसे मैं पूछूंगी वो कौन सी डिजीज हैं जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती हैं, तो आप उनका नाम बताएंगे। वो कौन सी डिजीज हैं जो डायरेक्ट नहीं होती, ट्रांसप्लेसेंटल होती हैं। ट्रांसप्लेसेंटल ये है कि फ्रॉम मदर टू ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बेबी, ओके, मदर से हुई है थ्रू ट्रांसप्लेसेंटा ड्यूरिंग द डिलीवरी। नॉर्मली वो नहीं होती बट डिलीवरी से हुई। देन ब्लड बॉर्न, एक आपको ब्लड लग गया सीधे इन्फेक्शियस, तो उससे हो सकती है। आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया विदाउट एनी चेकिंग या इंटरवेनियस ड्रग्स ली सेम सिरिंज के साथ, तो ब्लड की ट्रांसमिशन होगी। नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन क्या है, सॉइल रिसोर्सेज, जैसे टेटनस। मैंने आपको बताया था कि स्पोर फॉर्म जो होती है टेटनस बैक्टीरिया की, वो सॉइल में ही रहती है, इसलिए हम टेटनस का टीका लगवाते हैं, वैक्सीन, व्हेनेवर वी आर गेटिंग इन्फेक्शन, ताकि वो जो सॉइल हमारी बॉडी के अंदर खून के अंदर गई है उसमें कहीं टेटनस ना चला गया हो। उसके बाद आपके पास वाटर सोर्सेज आ जाती है, जैसे लेजेंडरी डिजीज जो वाटर होती है। देन आपकी एनिमल सोर्सेज आ जाती हैं, जैसे कैट्स ट्राई डिजीज, लाइम डिजीज, इंसेक्ट्स होती है, जैन एनिमल से आती है, इकोलाई जैसे होता है, और फोमाइट या एक्सपर्ट। फोमाइट्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी वो हैं बैक्टीरिया जो कि आपकी लेलेंस के ऊपर पड़े होंगे, आपके टिश्यू रोल नैपकिन के ऊपर होंगे, एंड देन यू गेट द इन्फेक्शन फ्रॉम देम। टॉवल से होंगे तभी तो कहते हैं कि ह्यूमन टॉवल नहीं यूज करना चाहिए किसी। ऑलराइट, ये भी उसी की डिटेल है कि ट्रांसप्लेसेंटल कौन से होते हैं, वाया बर्थ कैनाल कौन से होते हैं, और ब्रेस्ट मिल्क कौन से होते हैं। ट्रांसमिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है, दैट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन लाइक दिस, ओके। सो फ्रॉम मदर, मदर को उन्होंने टॉप पे बिठाया है, टू द बेबी, इसलिए ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाती है। इनमें ट्रांसप्लेसेंटल हो सकता है थ्रू द, जो आपकी प्लेसेंटा और कनेक्शन विद द बेबी होता है थ्रू द प्लेसेंटल कॉर्ड, उसके थ्रू हो सकता है। देन थ्रू द बर्थ कैनाल, डायरेक्टली फ्रॉम द बर्थ कैनाल एट द टाइम ऑफ बर्थ, लाइक इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस, एक लेची का जो मेनिंजाइटिस है बच्चों में, ये सारे इसी वजह से होते हैं, डायरेक्ट इन्फेक्शन के थ्रू। देन ब्रेस्ट मिल्क, थ्रू ब्रेस्ट फीड कुछ डिजीज जो है वो ट्रांसफर होती हैं, जैसे स्टेफ ऑरियस, साइटोमेगालोवायरस, ये सब इन्फेक्शन ट्रांसफर होती हैं मदर से बेबी को। आपसे जब ये पूछा जाएगा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या है, तो यू शुड नो कि इट इज द वे थ्रू व्हिच द baby get infection from mother, either it from transplacental, either it is from the direct birth canal, or either it is from the breast milk. So this is also very important. उसके अलावा ट्रांसमिशन कौन कौन सी थी, ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो ब्लड के थ्रू हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हो सकती है, और फीकल रूट थ्रू हो सकती है। देन पोर्टल ऑफ एंट्री रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हो सकती है, जीडी के थ्रू हो सकती है, स्किन के थ्रू हो सकती है। ये सारे चार्ट्स बेटा आपने पढ़ने हैं, जो आपको पता याद हो जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज मेजर मेजर चीजें आपको आनी चाहिए। जो टॉप पे एक एक दो दो एग्जांपल्स आपको जरूर आनी चाहिए कि कौन कौन सी कैसे होती है। वाटर बॉर्न डिजीज जैसे ये वाली लिखी हुई है, ये कैसे करती हैं, ये टेबल आपने अच्छी तरह से करने हैं सारे अपनी बुक के। इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टेबल्स ही हैं ज्यादा, और डेफिनेशंस। एडेरेंस टू द सेल सर्फेस, लेकिन क्या कि वो अडेयर कैसे करता है, आइदर फ्रॉम पाइलाई जो मैंने आपको बताया था, या गैलाक्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, एनीवन टेल मी विदाउट रीडिंग दिस स्लाइड। मैम पॉलीसेक्राइड्स। ओके, क्या करते थे वो, मैम पैथोजेनिसिटी को प्रिवेंट करते। वो तो करते थे बेटा, लेकिन पॉलीसेकेराइड्स भी हैं इसमें, लेकिन ज्यादा इसमें पॉलीसेकेराइड प्लस इसमें कैलेक्स का पार्ट था ना, जो कि एक लेयर जो है वो लेते ही उससे थे बैक्टीरिया से, ह्यूमन बॉडी सेल वॉल से, ये बैक्टीरियल सेल वॉल अटैच हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन जो इसकी विद द ह्यूमन सेल वॉल, तो वो एक स्लाइम लेयर बना देती थी, मैंने आपको बताया था। और ज्यादातर ये वहां होती थी जहां हम आर्टिफिशियल कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन के अंदर कोई ऑर्गन डाल दें, जैसे हार्ट वाल्व्स होते हैं आर्टिफिशियल, जैसे प्रोस्टेटिक इम्प्लांट्स होते हैं, कैथेटर्स होते हैं, ठीक है, तो ये वो चीज है, ठीक है। तो ये दो चीजों से ढेर कर सकता है। पॉलीसेकेराइड पाइलाई की क्या एग्जांपल थी, नाइजीरिया गोनोरिया निकोलाई, और ये बड़ी जल्दी अटैच हो जाती है विद द यूरिनरी एपिथेलियम और यूटीआई कॉज करते हैं। ट्राइकोकैलेक्स की एग्जांपल हमने स्ट्रेप्टोकोकस एपिडेमिडिस की दी थी, जो कि और वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई की भी, ये यूजली उन ऑर्गेनिज्म में करते हैं जहाँ पे हम
आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व्स इन्वॉल्व कर दें. दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस. थर्ड चीज वही आगे की इन्फ्लेमेशन कैसे हो रही है, इंट्रासेलुलर सर्वाइवल कैसे हो रहा है, इन्वेजन कैसे हो रही है. इन्वेजन कैसे होती है? एंजाइम्स के थ्रू. बहुत सारे बैक्टीरिया ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट करते हैं, ये वाले एंजाइम्स. हयालुरोनिडेज एंजाइम होता है, ये क्या करता है, hyaluronic एसिड को डिस्ट्रॉय करता है आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स टू स्प्रेड रैपिडली. IgA proteases क्या करता है, degrades the secretory IgA following the bacteria to attach the mucous membrane. तो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए what they do is they usually basically produce these hyaluronic acid and IgA proteases, and that result in the destruction of the hyaluronic acid in the subcutaneous tissue as well as the mucous membrane. So that results into the adherence of the bacteria inside the human body. इसी तरह several virulence factors contribute to the invasive of the by limiting the ability of host defenses. What they do is capsule that will anti-phagocytic effect, and what it will do is it will help to stop or to at least slow down the phagocytic process. Second anti-selective factor is cell wall protein, that is found M protein and found in the group A Streptococci, for example, or group A of protein A is also present in Staph aureus. Now these group A proteins, what do is what they this cell wall protein destruction is there. So what they will do is they will decrease the anti-phagocytic factors, and at the end the M protein and binds with the IgG and prevent the activation of complement system. Dr. Rouge already told you that in host defense that complement system is very important. So what it will do is it will affect directly the phagocytic activity, and it will decrease or totally destroy the phagocytic activity. I hope it is clear. Did you get this? Yes, sir. मैंने आप लोगों को Yes. बताया जी जी. हेलो हेलो. इसमें बेटा आप लोगों ने थर्ड पॉइंट में सिर्फ ये याद रखना है कि बाकी चीजों के साथ साथ बैक्टीरिया कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं जिससे वो एंटीफैगोसिटिक एक्टिविटी या होस्ट सेल डिफेंसेस को वीकन करते हैं, और उसकी वजह से उनकी वहां पे एडहेरेंस एक तो कंफर्म हो जाती है, दूसरा वो एंटीफैगोसिटिक एक्टिविटी रिलीज करते हैं. इसमें एलुरोनिडेज एंजाइम आ जाता है, IgA प्रोटीएजेस आ जाता है, इसमें आपके M प्रोटीन्स आ जाती हैं, और इसके अंदर आपके ये एन प्रोटीन जो सेल वॉल के अंदर है वो आ जाती हैं, जो कि ग्राम पॉजिटिव प्रोग्राम प्रेजेंट है. तो ये सारी प्रोटीन्स मिलके क्या करती हैं, एंटी फैगोसिटिक एक्टिविटी करती हैं. तो फैगोसाइटोसिस ही नहीं हो पाता, दैट रिजल्ट्स इन द हेल्प टू इंक्रीज देयर वायरस एक्टिविटी और अपनी डिजीज प्रोसेस स्टार्ट करने में इनको हेल्प. इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज करते हैं? इन्फ्लेमेशन है क्या? इट इज एन इंपॉर्टेंट होस्ट डिफेंस induced by the presence of bacteria in the body. There are two types of inflammation, एक pyogenic होती है और एक granulomatous होती है. Inflammation क्या होता है कि whenever कोई भी outside factor like bacteria or virus or any kind of these bacteria जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम या होस्ट डिफेंस को एक्टिव करते हैं. तब जो रिएक्शन आपकी बॉडी प्रेजेंट करती है उसको हम इन्फ्लेमेशन. ये दो तरह के सकते हैं, एक पायोजेनिक और एक ग्रेनुलोमेटस. जो एक्यूट इन्फेक्शन होती है, जो अर्ली 3 वीक्स की इन्फेक्शन होती है, उसको पायोजेनिक भी कह सकते हैं या एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं. और जो ग्रेनुलोमेटस है वो लॉन्ग टर्म होती है, मोर देन 3 वीक्स जब गुजर जाते हैं, देन इट कॉजेज द ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन. पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन, the host defense against pathogenic bacteria such as strep pyogenes consists of neutrophils, that is your acute inflammatory cells, neutrophils. Granulomatous infection हो चुकी है, वो host defenses that are against intracellular granulomas producers, यहाँ पे बैक्टीरिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और इंट्रासेलुलर पैथोजेंस के साथ ये होती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्रेनुलोमेटस डिजीज, एंड इसमें मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. ये आपको समझ आ गई बेटा इन्फ्लेमेशन क्या होती है और की दो टाइप्स कौन सी हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अभी आप लोग इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करने वाले हो जनरल पैथोलॉजी में भी, तो ये आपकी जो इसकी डिटेल है ना हम उसमें डिस्कस करेंगे. So you will be more good at it. After general bacteriology हम खत्म करेंगे, आपकी इन्फ्लेमेशन शुरू होनी है इन द जनरल पैथोलॉजी, तो वो आपको ये कोरिलेट करने में बहुत आसानी होगी. इंट्रासेलुलर सर्वाइवल, बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था कुछ इंट्रासेलुलर पैथोजेंस होते हैं जैसे रिकेट्सिया है या क्लैमिडिया है, वो क्या करते हैं, दे कैन इन्वेड आवर होस्ट डिफेंसेस
by a process called intracellular survival, that the bacteria can live within the cells, are protected from attack by the macrophages. ये तो गॉड गिफ्टेड चीज है। एक दफा जब वो सेल के अंदर चले गए तो अब ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम जाहिर बात है अपने सेल्स के अगेंस्ट तो नहीं एक्ट करेगा, तो ये इसलिए बच जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि ये अंदर ही जो रहते हैं अपने सेल की वॉल के अंदर नहीं होते, ये ह्यूमन बॉडी के सेल के वॉल के अंदर होते हैं, इनको अटैक ही नहीं करते मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। मैम इस पॉइंट की समझ नहीं आई। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ ऑब्लिगेट पैथोजेंस होते हैं जो कि इंट्रासेलुलर होते हैं, ये बताया था जी। Yes, ma'am. ये उन्हीं बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो एक तरीका उनका बचने का ये है, उन बैक्टीरिया पे स्पेशल अल्लाह की करामात है कि वो नहीं मरते, मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल से नहीं पकड़े जाते, क्योंकि वो आपके अपनी बॉडी सेल के अंदर छुपे हुए हैं। उनकी तो सेल ऑर्गेनाइज कंप्लीट ही नहीं है, उनको जिंदा रहने के लिए उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो ह्यूमन होस्ट सेल के अंदर जाके रहेंगे। वंस एक दफा जब वो अंदर चले जाते हैं आपकी बॉडी सेल के अंदर, किसी भी जगह के रेस्पिरेटरी सिस्टम के, यूटीआई के, जिधर भी वहां अंदर चले जाते हैं, वहां सेफ रहते हैं, क्योंकि जो आपके बॉडी गार्ड्स हैं वो आपके सेल को तो नहीं ना अटैक करेंगे, है ना। हमारे एपिथेलियल सेल्स के अगेंस्ट वो अटैक नहीं करेंगे, उन्होंने तो सिर्फ बैक्टीरियल सेल के अगेंस्ट अटैक करना है। तो वो जो बैक्टीरिया है, बिकॉज ऑफ इट्स इनकम्प्लीट कॉम्पोनेंट, वो तो पहले ही ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर चला गया। जब उसके अंदर चला गया तो उसको प्रोटेक्शन मिल गई आपके अपने घर की, तो फिर अब उसको पुलिस नहीं पकड़ सकेगी। ये ऐसी है जैसे आपको एक चोर आपके घर में आया, आपने कॉल की, फिर आपको उस चोर पे तरस आ गया क्योंकि वो पुअर था या जो भी वजह बनी, हमने उसको अपने अंदर घर के अंदर छुपा दिया। पुलिस आती है पूछने के लिए, हम कहेंगे नहीं जी वो तो यहाँ है ही नहीं, तो पुलिस चली जाएगी, जारी बात है। इसी तरह से जब आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल्स आपके अपने सेल के पास आएंगे, तो वो आपके सेल होगा, आपने अंदर उसके छुपाए हुए इंटरसेल पैथोजन, लेकिन उनको तो नहीं पता, वो तो आपकी बॉडी सेल वॉल देखेंगे और वापस चले जाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट अलाउड टू अटैक देयर ओन बॉडी होस्ट सेल, बिकॉज वो तो वहीं के मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। ये समझ आइए बात? यस मैम। ओके, तो जो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजेंस हमने पढ़ा था, ये उन्हीं की सर्वाइवल की बात हो रही है कि वो कैसे बच जाते हैं। वो इसी तरह बच जाते हैं कि क्योंकि वो ह्यूमन सेल के अंदर ही होते हैं, तो उनको मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स अटैक नहीं करते। इंटरसेलुलर पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं मैंने बताया, बैक्टीरियम लेजिनेला, ब्रुसेला, लिस्टीरिया और फंगस में हिस्टोप्लाज्मा है। वो वैसे उन्होंने आपको बता दिया, लेकिन अभी फंगल हम बाद में। The bacteria use several different mechanisms to allow them to survive, grow intracellularly. अब अंदर रहने के लिए भी और भी मेथड्स कुछ चाहिए सर्वाइव करने के लिए। एक तो इन्वेशन ऑफ द फ्यूजन ऑफ फैगोसोम विद द लाइसोसोम which allows the organisms to avoid the degradative enzymes in the lysosome. आप सबको पता है कि लाइसोसोम क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिग्रेड करना है, उसने फैगोसोम करना है, ठीक है। वो क्या करते हैं ये वाले, ये इनहिबिशन कर देते हैं फ्यूजन करके फैगोसोम की और लाइसोसोम की, यानी जो डिस्ट्रॉइंग पार्ट है और जो बेनिफिटरी पार्ट है, यानी जो बनाने वाला पार्ट है, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, उनकी फ्यूजन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डिग्रेडेटिव एंजाइम बनाने नहीं देता, जिसकी वजह से लाइसोसोम में डिग्रेडेटिव जो है एंजाइम बनते नहीं है, ठीक है। तो वो आराम से ऑर्गेनिज्म अवॉइड कर सकता है इन एंजाइम्स को जो कि लाइसोसोम के अंदर बन रहे हैं, जिससे सेल ने डिस्ट्रॉय होना है। आप बात समझे हो? नहीं, ये पॉइंट नहीं समझ आया। नॉर्मली लाइसोसोम जो है वो आपकी बॉडी से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकालना होता है या फैगोसोम करना होता है, वो फैगोसोम को एक्टिव करता है अपने एंजाइम्स के थ्रू। अब ये बैक्टीरिया की इधर यहाँ पे क्या होती है कि इनकी इनहिबिशन हो जाती है इन एंजाइम्स की, जो जाके फ्यूजन हो जाए फैगोसोम की और लाइसोसोम की। एक एंजाइम बना रहा है और एक एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जब उन दोनों की फ्यूजन हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म आराम से उनको चकमा दे के निकल जाता है, और ऑर्गेनिज्म को सेल के अंदर ही जो लाइसोसोम है वो डिग्रेड नहीं कर पाता एज अ फॉरेन पार्टिकल। आप समझ आइए? आप लोगों को ये समझ आएगी तो मैं आगे चलूंगी। हेलो, सब सो गए? मैम बैक्टीरिया जी मैम। लाइसोसोमल एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहा है। बेटा देखो, जो बैक्टीरिया के अंदर है ना सेल, वो बाहर वाले से तो बच गए कि बाहर वाले सेल ने कहा कि बाहर वाले जो हमारे बॉडी गार्ड्स हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, उनसे तो और न्यूट्रोफिल्स, उनसे तो वो बच गए कि ये तो ह्यूमन का सेल सही है, तो मैं इसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अब सेल के अंदर लाइसोसोम होता है जो कि डिग्रेडेटिव एंजाइम रिलीज करता है, ताकि जो सेल के अंदर हमारी गैर जरूरी वेस्ट मटेरियल है उसको डिग्रेड करके
ह्यूमन से सेल से बाहर छोटे छोटे पॉइंट निकाल के फैगोसोम्स बना के बाहर फेंक दे। समझ आई ये बात? ये नॉर्मल है। Yes, ma'am. अब ये वाले जो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस हैं ये क्या करते हैं, ये बड़े चालाक। ये जब ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म जो बॉडी सेल के अंदर चले जाते हैं, ये फैगोसोम और लाइसोसोम को आपस में लड़वा देते हैं। उनको यही समझ नहीं आती कि हमने एंजाइम डिग्रेड करने की जरूरत है या नहीं, हमें जरूरत एंजाइम रिलीज करने की, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज कंफ्यूजन, क्योंकि फैगोसोम और लाइसोसोम दोनों मिल जाते हैं, उनकी फ्यूजन हो जाती है। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो बैलेंस, इक्वल बैलेंस हो जाते हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। और इस तरह ये जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो चकमा दे देते हैं लाइसोसोम को कि तुमने अभी डिग्रेडेटिव एंजाइम नहीं बनाना है, क्योंकि फैगोसोम तो नॉर्मल है, ठीक पड़ा हुआ है, उसको नहीं जरूरत अभी बाहर निकालने की किसी को भी। ये बात समझ आई आपको? Yes, ma'am. ओके, इसको एक दफा दोबारा रीडिंग दूंगी ना बुक से, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इनहिबिशन ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ द फैगोसोम व्हिच रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोमल डिग्रेडेटिव एंजाइम। दूसरा पॉइंट क्या है, एक तो ये वो फ्यूजन करा देता है, दूसरा वो कहते हैं फैगोसोम को ही एसिडिफाई कर देती है, उसकी इनहिबिशन करते हैं एसिडिफिकेशन से। इनहिबिशन ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ द फैगोसोम, जब फैगोसोम एसिडिफाई होता है तो वो सिग्नल भेजता है लाइसोसोम को ताकि वो अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर दे डिग्रेडेटिव एंजाइम को प्रोड्यूस करने की। जब आप उसकी जो फैगोसोम है उसकी एसिडिटी को इनहिबिट कर देंगे तो उसको सिग्नल नहीं मिलेंगे लाइसोसोम को, और फिर वो प्रोड्यूस ही नहीं करेगा या रिड्यूस कर देगा अपनी डिग्रेडेटिव एंजाइम प्रोड्यूस करने की एक्टिविटी। समझ आइए? Yes, ma'am. एक में तो नहीं, वैसे ही ये आपने मसलतन यस मैम नहीं करता। इफ यू आर क्लियर देन यू शुड से यस। Ma'am, समझ आ गई। ओके, मुझे समझ लग रही है ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मेन चीज आपने ये समझनी है कि फैगोसोम का काम है एसिडिफिकेशन पैदा करे सेल के अंदर, और लाइसोसोम उसको डिक्रीज करने के लिए एंजाइम प्रोड्यूस करे जो कि डिग्रेडिंग एंजाइम्स है। ठीक है, ये समझ आ गई बात? Yes, ma'am. ये दोनों ऑपोजिट चीजें यूं समझो, फैगोसोम और लाइसोसोम। ये पहली बात तो वो कि इनकी फ्यूजन इनको मिलने नहीं देता, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल के अंदर पड़ा हुआ है वो बीच में आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट इनकी फ्यूजन नहीं होने देता। ये बात समझ आ गई? Yes. नंबर Yes, टू ma'am. पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट में उन्होंने ये कहा कि उसके अलावा वो ये क्या करता है कि जब वो बीच में आ जाता है तो वो फैगोसोम को एसिडिफाई, जो जब वो होना होता है जिसने, उसको एसिडिफाई नहीं होने देता। Hmm. ठीक है, फैगोसोम को Yes, ma'am. जब वो एसिडिफाई नहीं करेगा तो लाइसोसोम जो है ना वो अपने एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि उसको सिग्नल नहीं मिल रहा। एक तो वो खुद बीच में आ गया ना इंट्रासेलुलर पैथोजन, तो उसने फ्यूजन नहीं होने दी। ठीक हो गया। दूसरी चीज उसने क्या की कि जो एसिडिफिकेशन प्रोड्यूस करता था फैगोसोम, उसको भी इनहिबिट कर दिया उसने। उससे क्या हुआ कि उसको सिग्नल नहीं मिले, लाइसोसोम को इनडायरेक्ट सिग्नल भी नहीं मिले, तो वो डिग्रेडेशन से मिलाना बंद हो गया या कम कर दी उसने। ठीक है। थर्ड चीज क्या हुई कि escape from the phagosome into the cytoplasm where there are no derivative enzyme। थर्ड चीज ये है कि जो फैगोसोम जहाँ पे बैक्टीरिया फिक्स हुआ था वो सेल के आगे पीछे घूमा, ऐसी जगह पे रहता जहाँ डिग्रेडेटिव एंजाइम हो ही ना। डिग्रेडेटिव एंजाइम ज्यादा वहां होंगे जहाँ साइटोप्लाज्मिक लाइसोसोम होगा या फैगोसोम होगा, क्योंकि इन दोनों के ये काम है डिग्रेड करना। समझ आइए? Yes, ma'am. चलो, अब इसको सिंपल ये रखो, दो चीजें पॉइंट याद रखो, 3 पॉइंट्स। नंबर 1 के लाइसोसोम फैगोसोम्स का काम है एसिडिटी प्रोड्यूस करना, और फैगोसोम का काम है एसिडिटी प्रोड्यूस करना और लाइसोसोम को कहना कि प्लीज आप ऐसा करें कि डिग्रेडेटिव एंजाइम्स बनाना शुरू कर दें ताकि ये जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको हम डिग्रेड करके सेल से बाहर फेंक दें। ठीक है, दूसरी ये मेन आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब हमारा इंटरसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, बैक्टीरिया जो अंदर चला गया गंदा, वो क्या करता है, बग जो है वो क्या करता है, वो एक तो फैगोसोम के अंदर होता है क्योंकि उसको खाया होता है इसने, इस सेल ने, तो हमारे होस्ट सेल ने फैगोसोम के थ्रू बैक्टीरिया को अंदर लिया होता है। अब वो क्या करता है कि सबसे पहले तो एसिडिटी खत्म कर देता है फैगोसोम की एसिडिफिकेशन, कि वो ये करे ही ना या इनहिबिट कर देता है। तो अगर एसिडिटी नहीं होती तो लाइसोसोम को सिग्नल नहीं मिलते, वो क्या करते हैं, वो डिग्रेडेटिव एंजाइम बनाना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, क्योंकि जब तक उसको कहेंगे नहीं तो वो काम क्यों करेगा अपना। ठीक हो गया? हेलो? Yes, ma'am. ओके। और एक जो नेचुरली प्रेजेंट है वो तो है ही कि वो उनकी फ्यूजन नहीं होने देता, वो बीच में बैठा होता है, जो इंट्रासेलुलर पैथोजन है, जो बग है हमारा, वो इन दोनों को मिलने में नहीं देता, इनकी फ्यूजन भी नहीं होने देता। इसकी वजह से भी ये स्लो प्रोसेस हो जाता है।
और जो ऑर्गेनिज्म है उसको चांस मिल जाता है कि वो स्केप कर जाए और वो सेल की किसी ऐसे पार्ट में चला जाए आउटर मेम्ब्रेन साइड पे जहाँ पे ये हो ही ना, लाइसोसोम भी ना हो और फेगोसोम भी ना हो। ठीक है, यस मैम। आप इसको कल एक रीड देना और कल फिर डिस्कस होगी इस बात पे। कल डॉक्टर रूही आपका लेक्चर इन है, उनसे आप दोबारा ये क्लियर करवा सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आई। लेकिन आप रीडिंग करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। मैम जी जी, हमारी जो प्रैक्टिकल कॉपीज हैं, अगर कोई अभी नहीं ले सक रहा उसके साथ उसके पास पहले वाली पड़ी में वो यूज कर सकता है? बेटा आप न्यू ले लो प्रैक्टिकल कॉपी, अभी तो प्रैक्टिकल स्टार्ट ही नहीं हुए, कब से स्टार्ट होने हैं आपके? आज से? हमें अभी डेट शीट बैचलर नहीं से है ना नहीं आपकी? पता। नहीं नहीं, हाँ वो आपको पोस्ट हो जाएगा, आपको बता देंगे। तब तक आप लिखे ना, लेकिन आप बस प्रैक्टिकल लेते रहें। जब इंशाल्लाह ईद के बाद मुझे उम्मीद है कि आपकी स्टार्ट हो जाएंगे प्रैक्टिकल्स इन साइड कॉलेज, तो फिर हम प्रैक्टिकल नोटबुक रीड भी कर लेंगे मिल के साथ। आप यहीं से बुक शॉप से भी ले लेना, आजकल वैसे ही बुक शॉप आपकी बंद है। तो अभी आपने प्रैक्टिकल का कुछ भी नहीं करना, अभी आप ऐसे ही रहो। जब आपको हम डेट शीट देंगे, टाइम टेबल देंगे फॉर प्रैक्टिकल्स, तो उसमें आपने प्रैक्टिकल सिर्फ सुन लेना है और उसको सेव कर लेना है। बाकी जब हम आपको खुद करवाएंगे ना, जब आप आ जाओगे, देन यू विल स्टार्ट योर प्रैक्टिकल नोटबुक टू बी डन। ओके, लेकिन बेटर है कि टू टेक न्यू वन। ऑलराइट, थैंक यू मैम। ओके। द जीन्स दैट इनकोड, अच्छा इसके बाद कुछ चीजें हैं जो जेनेटिक मटेरियल से भी होती हैं, जैसे कि विरलेंस फैक्टर्स जो है वो आपके जेनेटिकली कोडेड होती हैं। वो आपकी बैक्टीरिया के जीन्स में जो कि वो किस तरह से विरुलेंस अपनी फैलाएं। So these are called the genes that encode many virulence factors in the bacteria are clustered in the pathogenicity islands on the bacterial chromosome. बैक्टीरियल क्रोमोसोम के ऊपर पैथोजेनेसिटी आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर वो विरुलेंस फैक्टर्स के जीन्स इनकोडेड है और उनको हम पैथोजेनेसिटी आइलैंड्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के उस पार्ट को बैक्टीरिया के। They are found in many gram-negative rods like E. coli, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Vibrio cholerae and gram-positive में S. pneumoniae के ऊपर अभी तक पाया गया है। ये एग्जाम्पल उन्होंने दी इकोलाई की, आपकी बुक की तस्वीर है। इसमें आपको पता चाहिए कि जो नॉन पैथोजेनिक इकोलाई उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, जबकि जो पैथोजेनिक हैं उनके ऊपर डिफरेंट जेनेटिक ये विरुलेंस टैग या विरुलेंस कोडेड जीन्स हैं जो कि डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं। अब इकोलाई ही है वैसे बेसिक बैक्टीरिया, बट अगर उसके ऊपर इंटेरोजेनिक स्ट्रेन का जीन कोडेड है तो वो इंटेरोजेनेसिटी करेगा। इंटेरोजेनेसिटी मींस इंटेस्टाइन की टॉक्सिसिटी करेगा। अगर उसके ऊपर यूटीआई का पैथोजेनिक स्ट्रेन है तो उसके ऊपर वो वही वाला डिफरेंट दैट इज पैल बी जो जेनेटिक कोड है वो लगा होगा तो वो करेगा। ठीक है, और अगर वो यूनिटरी मेनिंजाइटिस का इकोलाई का कोड है वो करेगा। ये इस कोड के साथ, ये सी कोड के साथ, ये जो बी और ए हैं बट टाइप्स के इकोलाई हैं वो यूटीआई नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट ट्रैक फीवर नहीं कर सकते। इसी तरह जो बी वाला है वो मेनिंजाइटिस नहीं कर सकता। तो ये जेनेटिक कोड्स होना जरूरी है ऑन द क्रोमोसोम पैथोजेनेसिटिक आइलैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल इन दिस केस इकोलाई, ताकि वो वाले डिजीज कॉज कर सके। एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में बहुत से डिजीज कॉज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस कोड से इनकोडेड है इन योर द क्रोमोसोम ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया। ये बात समझ आ गई? ये क्लियर है? ओके, यस ये मैम। भी आपकी बुक का है, उसमें से आप देख लेना। देन इज टॉक्सिक प्रोडक्शन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट है बिकॉज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि दो तरह के होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स एंड एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेवरल ग्राम पॉजिटिव, जबकि ग्राम नेगेटिव में एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन्स दोनों में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन एंडोटॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव में प्रोड्यूस होते हैं। ये बात पता है ना कि मैंने बताई थी उस दिन? यस यस मैम। मैम। ओके, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स और हाई टॉक्सिसिटी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, टाइम हमारा आप हो गया। ओके, पॉलीपेप्टाइड्स और हाई टॉक्सिक, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं बेसिकली इन नेचर और हाईली टॉक्सिक होते हैं। जो एक्सोटॉक्सिन है उनके दो यूनिट्स होते हैं, ए और बी। ए जो है टॉक्सिक पार्ट है, बी जो है बॉन्डिंग पार्ट है। ये टॉक्सिक जो है टॉक्सिन जाके किसी जगह लगेंगे तो ही वहां जाके टॉक्सिसिटी करेंगे, तो फिर इनकी बाइंडिंग इंपॉर्टेंट है। एंड देन द एक्टिव होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, ए और बी। ए क्या करता है? टॉक्सिसिटी करता है, बी क्या करता है? बाइंडिंग। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा हुआ है कि ये ऑर्गेनिज्म ये वाले एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और डिजीज कौन सी कॉज करते हैं। ये आपको रट्टा ही मारना पड़ना है जो टेबल्स हैं उनको। अभी तो रीडिंग्स दो, और जब हम बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे। एक्सोटॉक्सिन जो कि प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया में, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, वो टेटनस टॉक्साइड है जैसे मैंने आपको बताया। देन बोtulinum टॉक्सिन है,
क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो है वो सूडोमोनास कोलाइटिस करता है बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, जो कि ए है और बी है। बी जो है वो साइटोटॉक्सिन है और जो ए है वो एंटेरोटॉक्सिन है। इसकी दो टाइप्स हैं। क्लोस्ट्रीडियम जो है वो गैस गैंग्रीन करता है और वो अल्फा टॉक्सिन है। ये डिटेल्स आने की जरूरत नहीं है इनमें, ये सारी हम पढ़ेंगे जब हम ये बैक्टीरिया करेंगे। सिर्फ आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए कि किस तरह से होते हैं। जो एंथ्रेक्स का है वो उसके 3 एक्सोटॉक्सिन्स हैं, एडीमा कॉज फैक्टर, लीथल फैक्टर एंड प्रोटेक्टिव एंटीजन। ये भी जब हम वो करेंगे तो आपको पता चाहिए। एडीबीएज राइबोसिलेशन जो है वो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ये कॉलर टॉक्सिन करते हैं और जी टॉक्सिन करते हैं। मैं बेसिकली आपको ना इनके डिफरेंसेस बताना चाहती थी, वो हम कर लेते हैं कल। अरूज को मैं कहूंगी वो आपको डिटेल एक्सप्लेन कर देगी। एंडोटॉक्सिन एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम आप स्लाइड्स बहुत जल्दी मूव कर रही हैं, उसकी वजह से बिल्कुल रीड नहीं किया जा रहा। नहीं, ये रीड आपने करना भी नहीं, मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि ये मैं वैसे आपको बस डिफरेंसेस तक लेके जाना चाहती हूँ ताकि बेसिक एंडो एंड एक्सो के डिफरेंसेस आज आपको पता हो। ये कल आप दोबारा डिटेल में पढ़ोगे यही, ओके ठीक है? मैम, डोंट ओके। वरी, मैं आप Yes. यहाँ से हैंड ओवर करूंगी रोज को, वो कल आपको करवाएंगे। एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं बेटा, वो हम देख लेते हैं। बेसिकली ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल वॉल, मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया सेल वॉल का हिस्सा होते हैं। एंड ये क्या करते हैं, ये साथ ही रहते हैं। बैक्टीरिया रहेगा तो एंडोटॉक्सिन होंगे, नहीं होगा तो नहीं होंगे। और ये लो ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ये हमने कल की उस दिन कर लिया था। द टॉक्सिसिटी ऑफ द एंडोटॉक्सिन इज लो इन कंपैरिजन टू एक्सोटॉक्सिन। ये लो टॉक्सिसिटी, इसलिए इनका नंबर हमें ज्यादा चाहिए होता है। जो भी एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग मटेरियल होते हैं उनकी जो इन्फेक्शियस डोज है वो ज्यादा होती है। एंडोटॉक्सिन्स वीक होते हैं, वीकली एंटीजेनिक होते हैं, नॉन टॉक्साइड होते हैं। एंडोटॉक्सिन्स आर यूज्ड एज एंटीजेंस, हम इनको यूज करते हैं फॉर वैक्सीन पर्पस। ये करते क्या है, ये आपके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं और फिर एक्टिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और आपके हैगमैन फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से ये फैक्टर्स, ये सारी चीजें होंगी जिन जिन बैक्टीरियाज में एंडोटॉक्सिन जो है वो डिजीज कॉज करेगा। फीवर, हाइपरटेंशन और इन दोनों की वजह से एडीमा, एंड देन डीआईसी में जा सकता है पेशेंट अगर आप उसको कंट्रोल ना करें तो। दैट इज योर सेप्टिक शॉक, ठीक है? और आपके एंडोथेलियम को, ये वेस्कुलर एंडोथेलियम को बेसिकली डैमेज करता है इस तरह से, हाइपरटेंशन करके और फिर डीआईसी करके। डीआईसी क्या होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। ये की थी आपने फिजियोलॉजी में? हेलो, बारह अगर नहीं भी की तो ये हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेनली फाइंडिंग्स जो है वो किस वजह से होती हैं? फीवर आपको इंटरलेकन 1 की एक्टिवेशन की वजह से होता है। हाइपोटेंशन आपको ब्रेडिकाइनिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से होता है। इन्फ्लेमेशन आपको अल्टरनेटिव पाथवे की वजह से होता है, C3 C5A। और कोएगुलेशन डेफिसिट की वजह से डीआईसी होता है अगर हैगमैन फैक्टर एक्टिवेट हो जाए तो। प्रॉपर्टीज क्या होती है मेनली? जो एक्सोटॉक्सिन है वो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होते हैं, जबकि जो एंडोटॉक्सिन है सिर्फ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में। सिक्रीट कहाँ से होते हैं? सेल से एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट होते हैं, एंडोटॉक्सिन सिक्रीट नहीं होते क्योंकि वो तो बॉडी के साथ ही रहते हैं, बॉडी के अंदर ही रहेंगे बैक्टीरिया की। केमिस्ट्री में पॉलीपेप्टाइड्स हैं एक्सोटॉक्सिन, जबकि लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं एंडोटॉक्सिन, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन वॉल। लोकल ऑफ जीन, लोकेशन ऑफ जीन्स जो है वो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस पे होती है एक्सोटॉक्सिन की, जबकि बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे होती है एंडोटॉक्सिन। बाकी जो डिफरेंसेस हैं, टॉक्सिसिटी हाई है एक्सोटॉक्सिन की और एंडोटॉक्सिन की लो है। क्लिनिकल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा एक्सोटॉक्सिन रिलीज हुआ है बैक्टीरिया से, जबकि फीवर एंड शॉक होता है एंडोटॉक्सिन से। एंटीजेनेसिटी जो है मोड ऑफ एक्शन वेरियस है, उसमें इंटरल्यूकिन 1 और TNF फैक्टर है क्योंकि सेप्टिक शॉक कर रहा है। एंटीजेनेसिटी जो है वो हाईली एंटीजेनिक है, यानी कि जैसे ही आपकी बॉडी में एक्सोटॉक्सिन रिलीज होता है फौरन रिएक्शन आता है आपकी बॉडी का। एंटीजन वो होता है जो बाहर से आए और एंटी बॉडी वो होती है जो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और ये जो पूरली एंटीजेनिक है। वैक्सीन जो है वो सिर्फ टॉक्साइड मेथड से यूज होते हैं, जबकि नॉन टॉक्साइड नॉन वैक्सीन अवेलेबल इनके अगेंस्ट जो एंडोटॉक्सिन है। हीट स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉयड हो जाती है 60 पे, वो 100 पे भी स्टेबल रहते हैं और फॉर 1 आवर। डिजीजेस जो कॉज करते हैं वो एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है। देन इम्यूनोपैथोजेनेसिस इन सर्टेन डिजीजेस सच एज रूमेटिक फीवर एंड एक्यूट ग्रानुलोमाइटिस में क्या होता है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो itself causes the symptoms of the disease, but the immune response to the presence of the organism। आपके लिए खुद वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अफेक्टेड नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकल पाइथोजेनिस आपकी थ्रोट में होता है, वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैसे कर सकता है, या वो रूमेटिक फीवर कैसे कर सकता है, वो बोन में कैसे जा सकता है? वो कैसे जा सकता है? थ्रू द इम्यून रिस्पॉन्स, एंड उस रिस्पॉन्स की वजह से ये होता है। I think I should stop here, or tomorrow we will continue with the again with the endotoxin and exotoxins. Thank you, beta.